Right. So it's a very complex thing. It requires it's very expensive. Market a product को market में पहुंचाना, it's very expensive. It's not an easy task. It's a complex and expensive task. It requires a lot of resources, systems, and many things. So and in other words, it is basically a tough balancing act to increase access to market while ensuring your network is profitable and capable of handling the growth you want. मैंने आपसे फिर कहा, बार आपसे कहता हूँ, हम डिस्ट्रीब्यूशन ये नहीं है कि डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर एंड रिटेलर. So you look to your sales and marketing channels to generate demand for your products as well as fulfill it. Your market access depend on understanding the role you want your channels to play at a cost you are committed with the return they generate for you. So this is one thing you also, and the second thing is route to market control brands. Route to market control brands. How can you deliver and fulfill? Think about it. How can you deliver and fulfill your brand promise unless you manage your route to market properly and control your sales and marketing channels? If your brand is built on, now think about it, it's a key point. If your brand is built on quality attributes, you need your channels to execute on those attributes, not only at the point of purchase, but also if the product goes wrong and or when the customer needs ongoing services and support. ये बात समझ में आई है जो आखिरी मैंने बोली है? जी सर. ठीक, very good. So during this development of your market channel, also you need to understand how well you incentivize and reward your channels will have a big impact on the ultimate customer experience and your brand. And if your brand is built on low price, अगर आपका brand low price पे built होगा, then what would be your requirements in that case? If in term लो प्राइस, अगर आपने कहा एक क्वालिटी पे चैनल पे होगा, इट मींस मैंने आपसे कहा रूट टू मार्केट कंट्रोल्ड ब्रांड्स. इट मींस what are your commitments with your customer? Your channel must be capable to fulfill all the commitment with your customers. Now you said immediate replacement or immediate replacement warranty. It means your channel must be able to do that because you committed, this is your commitment with your customers. अब मैंने आपसे एक दूसरी बात की है. I said if your brand is built on low price पे होगा तो फिर क्या करेंगे? सर मुझे ये बात थोड़ी एग्जांपल से सही है, लो प्राइस और ये ब्रांड, ये चीज मुझे रिलेट नहीं कर रही, समझ नहीं आ रही. मैंने आपसे नहीं, आप सुने, मैंने आपसे कहा कि आपने अपने कस्टमर के साथ, पहली बात आपने कहा कि मैंने आपसे कहा कि मैंने अपने कस्टमर, मेरी प्रोडक्ट जो है वो, इफ योर ब्रांड इज बिल्ट ऑन क्वालिटी और सम एडिशनल एट्रीब्यूट्स, सम वैल्यू एडिड एट्रीब्यूट्स, आपने कहा कि हम कस्टमर को जो माइनर मेंटेनेंस है दैट वी परफॉर्म इमीडिएटली. जैसे ही कस्टमर राब्ता करता है हम फौरन उसको कर देते हैं. हम कस्टमर को जो है वो रिप्लेसमेंट पार्ट देते हैं कि जब वो अगर आप वारंटी क्लेम में आता है, फॉर दैट पीरियड वी प्रोवाइड द रिप्लेसमेंट पार्ट. इट मींस योर चैनल पार्टनर मस्ट बी एबल और मस्ट बी केपेबल टू प्रोवाइड ऑल दीज सर्विसेज. अगर आपने कमिट किया. yes, sir. अच्छा, yes, sir. and you know there is no free lunch. तो आप जब ये एडिशनल सर्विसेज दे रहे हैं, इट मींस देयर आर सम कॉस्ट इन्वॉल्व.
जी Yes, सर sir, Exactly. बिल्कुल आप जब कोई पार्ट खरीदने जाते हैं, अब मेरे साथ रहेंगे जैसे, अभी जब आप पार्ट खरीदने जाते हैं तो वो आपसे क्या कहता है कि मैडम विदाउट वारंटी ये 5,000 का है, विद वारंटी 5,500 कहता है आपसे। बिल्कुल सर ऐसा ही है। इसका मतलब है वो होता है। कहता है अच्छा वारंटी के लिए, फिर वो कहता है वारंटी के लिए ये वारंटी कार्ड भी देता है, उसके साथ कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस आपके साथ एग्री करता है, ऐसे ही होता है ना। तो Yes, sir. Yes, जी sir. सर Yes, sir. तो इस केस में अगर आप वारंटी के साथ कोई चीज बेच रहे हैं तो वारंटी क्लेम जब आएगा तो उसको सर्व करने की कैपेबिलिटी यू मस्ट हैव और नॉट Yes, sir. Exactly. Capability होनी जी चाहिए. होनी चाहिए। अच्छा नहीं होगी तो व्हाट विल हैपन, Customer lose हो जाएगा. कस्टमर की Losses. लॉयल्टी कस्टमर सेटिस्फेक्शन नहीं होगी Loyalty. सर नहीं रही, कस्टमर Yes, लॉयल्टी sir. खत्म हो Word जाएगी, of वो कहेगा mouth और loyalty भी Loyalty चली खत्म हो जाएगी। जाएगी. Loyalty hurt होगी. क्योंकि वो कहेगा कि ये Loyalty खत्म होगी तो advocacy भी तो भी खुद ही खत्म हो वो जाएगी, बिल्कुल खत्म हो जाएगी. क्योंकि वो कहेगा Exactly. ये लोग रिलायबल नहीं है। रिलायबल का डेफिनेशन मैंने क्या बताई थी आपको, रिलायबिलिटी क्या होती है, जो बोले वो करे. तो बोले वो करे। तो आपने तो वादा किया था कि अब आपकी वारंटी और वारंटी आप क्लेम नहीं दे रहे हैं, हमारी बात समझ में, इट मींस ये दिस इज योर रिस्पांसिबिलिटी बिकॉज यू नो मैंने आपसे क्या कहा कि दिस रूट टू मार्केट कंट्रोल ब्रांड्स, ब्रांड की इक्विटी खराब हो रही है ब्रांड की, वो डिस्ट्रीब्यूटर को कोई बुरा नहीं कह रहा, सब आपके ब्रांड को बुरा कह रहे हैं, यार इन्होंने वादा किया था फुलफिल नहीं कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, हाँ, अच्छा बिल्कुल। अब इसके रिवर्स साइड पे चलते हैं। मैंने कहा योर ब्रांड इज बिल्ट ऑन लो प्राइस प्रोडक्ट जिसकी कोई वारंटी नहीं है, बस जैसे खरीदो उसी वक्त आप देख लें, इसी वक्त जो भी प्रोडक्ट है लो प्राइस प्रोडक्ट है। तो जब क्या लो प्राइस पे लो मार्जिन भी होगा सर? जी क्या लो ये मार्जिन, कंसीडर करके चले? अच्छा जब बिल्कुल सही कह रहे हैं लो मार्जिन होगा, जब लो मार्जिन क्यों, क्योंकि आप चाहते हैं कि अगर इसमें ज्यादा मार्जिन, देखें मार्जिन कहाँ से आएगा, प्राइस में ही बिल्ट इन होगा ना, अपनी जी जेब में तो बिल्कुल आप देंगे नहीं। बिल्कुल. जी सर आपका जब लोग कहते हैं थिन मार्जिन प्रोडक्ट है, थिन मार्जिन प्रोडक्ट का मतलब है आपको क्या करना पड़ेगा सर, हाई टर्नओवर प्रोडक्ट होगी, और मास साथ डिस्ट्रीब्यूशन करनी होगी। और बताएं ये तो करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली उस मार्जिन को, जो मार्जिन उसने दिया है उसको सेव करने के लिए क्या करना चाहिए, तो डिस्ट्रीब्यूटर को अलाइन, जो भी चैनल है उसको अलाइन इस तरह करना चाहिए कि कॉस्ट इम्पैक्ट यस मिनिमाइज हो, वो यस, इनोवेटिव हो। हाँ तो आपको कहना चाहिए in this case I my channel will be aligned in eliminating every unnecessary activity that incur cost। क्या ख्याल है? बिल्कुल सही। जी अग्रीड सर अग्रीड सर। आई बात समझ में आई है? तो ये देखिए मैं फिर आपसे कहता हूँ, हम जा रहे हैं जी सर स्टेज 2 पर। डिस्ट्रीब्यूशन हमने पढ़ा हुआ है, हमें तो आता है, आपको तो सप्लाई चेन में पढ़ा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटर, जी होलसेलर, रिटेलर। हम जा रहे हैं स्टेज 2 पे, पैराडाइम शिफ्ट। हम कहते हैं कि हमें डिस्ट्रीब्यूशन सिलेक्शन में क्या क्या चीजें देखनी चाहिए। अब 1 रुपए की टॉफी है, उसके ऊपर आपने वारंटी क्लेम देना शुरू कर दिया, तो वो एक भी क्लेम ले गया तो फिर क्या होगा? ऐसे ही होता है ना, अंडे 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 आप बेचते हैं, अंडे के डिस्ट्रीब्यूटर पे कोई क्लेम कर, सर वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा प्रोडक्ट की, वैल्यू पे और आपके कस्टमर की एक्सपेक्टेशन पे। जो कस्टमर आपका इसीलिए मैंने कहा द इम्पोर्टेंट थिंग इज द कस्टमर सेगमेंटेशन। कस्टमर कस्टमर की सेगमेंटेशन कैसी है? सर इस जैसे आपने अभी अंडे की एग्जांपल दी, अब जैसे हम जाने लगे हैं मार्केट में तो हम कहते हैं वो व्हाइट बॉक्स वाला लेंगे, वो महंगा अंडा है लेकिन अच्छा है। जी बिल्कुल। ठीक इसी तरह सर एक उसमें खुले बेटा अंडे अगर आपको टूटा हुआ मिल निकलता जाते है हैं तो वो आप कम उसके सर प्राइस पे भी में। खड़ी हो जाती है ना। हाँ और सर जो खुले पैकेट में मिल रहा है वो 100 रुपए का मिल रहा है, दर्जन नहीं मिल रहा है, गंदा भी है लेकिन वो टूटा हुआ भी भी लोग होता है, कंज्यूम करें। और टूटा हुआ हाँ भी होता है। एग्जैक्टली अच्छा सर। टूटा हुआ आता है तो आप उसको थोड़ा सा साफ करके कहती हैं भैया, या फिर कहते हैं बस जान जान। लेकिन अगर उस आपने कहा उस बॉक्स में से टूटा हुआ निकलता है तो आपको बड़ा बुरा लगता है। समटाइम्स यू कंप्लेन टू द रिटेलर कि यार ये क्या है, हम इतना महंगा कंप्लेन क्लेम कर लेते हैं सर जाके, एग्जैक्टली। ऐसे ही है। अच्छा एक और जी चीज सर ये भी बात समझ में आ रही है ना कि अब आपकी ये बैलेंस, ये जी चैलेंजिंग सर डायनेमिक्स है, ये जो है ये सारे आपके चैलेंजिंग बिजनेस डायनेमिक्स है। अच्छा इसमें 2 बातें और देखेंगे कि जी अच्छा इससे पहले चैलेंजिंग बिजनेस डायनेमिक्स से पहले मैं थोड़ा सा मैं और सोचता हूँ कि ऑफन दिस सेल्स एंड मार्केटिंग चैनल्स कंट्रोल प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। ऐसा होगा? जी सर। जी सर डिफरेंशिएशन का मतलब मैंने आपको बताया था, पोर्टर की स्ट्रेटेजी हमने पढ़ी थी, डॉक्टर साहब ने भी पढ़ाई होगी, प्रोडक्ट
पोर्टर की डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी कहती है आइदर द कॉस्ट और डिफरेंशिएशन, यानी या तो कॉस्ट कम हो और सिमिलर सर्विसेज मिल रही हो, या कॉस्ट वही हो और एडिशनल बेनिफिट्स मिल रहे हो, या कॉस्ट का डेल्टा ये हो और एडिशनल सर्विसेज ये हो। याद है ये पढ़ाया था ना उन्होंने, पोर्टर डिफरेंशिएशन, पोर्टर स्ट्रेटेजी फॉर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। तो मुझे ऐसा लगता है, और मुझे क्या लगता है, हम खुद भी ये देखते हैं कि ऑफन दिस सेल्स एंड मार्केटिंग और द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स control our product differentiation. For example, you want your product or offering to be different from your competitors. ऐसा ही है? And to create this differentiation, to create this differentiation, channels play a vital role in enabling this. Often the channels you use is the sole way of demonstrating that your product is different from your competitors. For example, Dell की एग्जांपल आपने, डॉक्टर साहब ने भी आपको पढ़ाई होगी जब उन्होंने स्ट्रेटेजी बताई थी, जिसमें बताते जी हैं सर, क्या थी। जी सर, Dell in the computer सप्लाई चेन में बताई supply थी chain सर, में बताई Yes, थी, sir. उन्होंने क्या बताया? रिस्पॉन्सिव, Yes, जी रिस्पॉन्सिव और जी उन्होंने कैसे कहा Make था? to order. Make to order. Make to order. Yes, he said Dell in the computer industry was a good example of this, selling a product that was over 95% same as all its competitors. ऐसा ही है, वही कंप्यूटर जो कि दूसरे आप उसका कंपेटिटर बना रहा जी है, सर, both using the same chips, same operating software coming from the standard suppliers like Intel, Microsoft, ऐसे ही है, but its channel जी सर, online direct was its primary differentiator and offering price and flexibility advantages over its competitor, which at that time went to market through retailer and dealer channels. Is it clear? कोई मसला नहीं? तो जी सर, इसका मतलब है डेल से हमें ये भी नजर आया कि channels can, you know, same product using different channels partner, we can create some differentiation. जी सर, यस सर। क्या ख्याल है? जी है ना? अच्छा, now challenging business dynamics. हमने अभी तक जो डिस्कशन किया, हमें ऐसा लगता है कि सेल्स एंड मार्केटिंग चैनल्स आर कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिकली, ऐसा ही है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स सा मैटर। उस जी से निकल गए जी जो हमने पहले पढ़ा था, हमें लगता था ये तो बहुत आसान है, लेकिन हम देखा इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स एंड देयर आर मल्टी चैनल स्ट्रेटजी नीड टू एंगेज multiple partners with a different business models, and your strategy needs to work for them as well as for you. It means the strategy should be feasible for your partners as well as for you. It cannot be one way कि आप तो you are making money but your partner पार्टनर is not making money. अच्छा, सही, अच्छा, जब हमने पढ़ना शुरू किया सप्लाई Doesn't it depend कि आपके ब्रांड का पुल कितना स्ट्रॉन्ग है? You give a certain margin to your channels or make them profitable or be flexible or be having more control over your agreement with them. Yes, it depends. You are right. It depends. Either your distributor is powerful or you are powerful. In some cases, Exactly. your distributor is more powerful than you, and in some cases, you are more powerful. यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर चाहे काश मेरे पास ये ब्रांड आ जाए, और कहीं पर कोई प्रोडक्ट वाला कहे काश ये मुझे अपना, ये मेरा डिस्ट्रीब्यूटर बन जाए। यही कहना चाहते हैं काशिफ साहब? जी बिल्कुल, एग्जैक्टली। है ना? अच्छा, हम अगर बिल्कुल बेसिक ऑप्शंस को देखें दैट इज अवेलेबल इन द मार्केट एंड यू हैव ऑल अवेलेबल फॉर गोइंग टू मार्केट, इसको गोइंग टू मार्केट स्ट्रेटेजी भी कहते हैं, ठीक है, राउट टू मार्केट, गोइंग टू मार्केट। जी सर, तो in supply chain you have seen there are three structure for a distribution system, बताए थे डॉक्टर साहब ने, इस तरह का मॉडल बनवाया था। एक वो कहते थे No, डार्क, sir. नो सर, नो सर, नहीं सर, नो सर, ये वाला नहीं था।
नहीं यानी ऐसे नहीं बनाया था उन्होंने, ऐसे बनाया था मैन्युफैक्चरर कंज्यूमर, मैन्युफैक्चरर रिटेलर Distri- कंज्यूमर, कुछ इस तरह consumer. से, यस। आया था वो तो जी सर. बेसिक Yes, sir. जी Yes, बेसिक sir. Distributor. डिस्ट्रीब्यूटर, Distributor. रिटेलर, Retail. Consumer. कंज्यूमर। फिर उन्होंने एक बनाया था मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, Retailer. Consumer. Consumer. तो वो कहते थे कि देयर आर 4 बेसिक मॉडल्स, इन सम बुक्स मेंशन एज देयर आर 4 बेसिक मॉडल्स एंड इन सम बुक्स मेंशन एज देयर आर 3 बेसिक। इसको यानी कि 2 के बाद वालों को वो 2 ही कहते हैं, जिसको कि मल्टी टियर भी कहा जाता है, मल्टी टियर मॉडल्स। सो it means there are 3 basic models, one by one we will see, we can see this। यहाँ तक कुछ बात बन रही है, ये पढ़ा हुआ था ना आपने? सर अगर एग्जैक्टली बताऊं तो रमीश साहब ने जो पढ़ाए थे वो sir. 6 मॉडल्स पढ़ाए थे। वो अगर आप कहें तो मैं आपसे शेयर कर दूं। नहीं बेटा, मुझे मैंने पढ़े हुए हैं, Basic मुझे पता है। model. जी जी, वो 6 ही हैं, लेकिन वो असल में वो 6 इन्हीं से बने हैं, बिल्कुल ऐसा ही है, है ना? बिल्कुल वो ऐसा ही है। 3 से असल में जो बेसिक जी जो सर. बेस कहलाते हैं, मैंने देखिए ऊपर लिखा हुआ है, मैंने क्या लिखा है, मैंने आप मेरी स्लाइड पे Basic. ये बेसिक, ये Basic options. जी, इस बेसिक ऑप्शन से आप मल्टीपल ऑप्शंस आप निकाल सकते हैं, अभी हम खुद निकालेंगे, तो हमें बेस पता हो, बाकी ऑप्शंस वी कैन ड्रॉ। सो फर्स्ट ऑप्शन इज डायरेक्ट। अच्छा, डायरेक्ट का मतलब हमने वैसे तो ले लिया है कि डायरेक्ट मींस डायरेक्ट डिलीवरी टू द कंज्यूमर, ठीक है, ऐसे ही है। Customer. इट जी मींस सर. इन डायरेक्ट चैनल or in this structure, in direct sales structure or a direct, अच्छा कुछ जगहों में डायरेक्ट टू कंज्यूमर भी लिखा होता है, D2C भी लिखा होता है, ठीक है, DR2M भी लिखा होता है, D2M भी लिखा होता है, मैं मुख्तलिफ जगह लिखूंगी, हम तो इसको कह रहे हैं डायरेक्ट। अब मैं डायरेक्ट कह रहा हूँ, आप जो भी समझ लें, डायरेक्ट के आगे जो दिल चाहे लिख लें, अलग अलग किताबों में हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट वही है, D2C है, डायरेक्ट टू कंज्यूमर। एंड इन दिस स्ट्रक्चर, याद रखेंगे ये बातें, जहन में रखनी है, क्योंकि हम यहाँ बड़ी कंफ्यूजन है, लोगों ने बहुत मिथ बने हुए हैं। इन दिस स्ट्रक्चर द सप्लायर मींस, मैंने क्या कहा है, सप्लायर मींस मैन्युफैक्चरर, और इन सम बुक्स इज मेंशन्ड एज वेंडर और अ कंपनी। ये सब एक ही चीज के मुख्तलिफ नाम है, घबराना आदमी बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो आपसे कहेगा इन द डायरेक्ट स्ट्रक्चर द सप्लायर owns and manage all the resources in the value chain through the customer or a particular set of customers, ऐसे रखेंगे जहन में। So companies employing this model have multiplied since the internet enabled online direct distribution। क्या ख्याल है? जी सर. ऐसे ही हो गया ये केस, बहुत तेजी से फास्ट क्यों हुआ? क्योंकि ऑनलाइन बिल्कुल। डायरेक्ट ऐसे ही। अब सोचते जाएं, ठीक है, मैंने आपसे क्या कहा है, मेरा एम ये है कि आफ्टर दिस इंशाल्लाह ताला यू विल बी एबल टू डिजाइन योर ओन डिस्ट्रीब्यूशन। यस, मैं इंशाल्लाह ताला आपको एक मॉडल भी बताऊंगा, उसको स्ट्रेटेजाइजर मॉडल कहलाता है, ऑनलाइन बनाएंगे, जिसमें कि पूरा बिजनेस, ऑनलाइन बिजनेस खड़ा करेंगे। मैं एक असाइनमेंट आपको दूंगा जिसमें ये पूरा आप बिजनेस, अपना ऑनलाइन बिजनेस खड़ा करेंगे किसी भी प्रोडक्ट को पकड़ के। सो एग्जांपल्स, अगर हम इसमें कुछ एग्जांपल्स देखना शुरू करें, एग्जांपल्स इंक्लूड डेल इन द कंप्यूटर बिजनेस, एक और है इजी जेट करेंगे, इजी जेट ऑन। अब सारा देखें, ये D2C को मैंने कहा ये मल्टीप्लाई कब हुआ, जब इंटरनेट हो गया। तो मैं आपसे बार बार कहता हूं, ट्राई टू फाइंड यूज ऑफ इंटरनेट इन द बिजनेस। दिस हम सबके पास है ये ऑल द टाइम। मोबाइल फोन. यस, इसके थ्रू ही बिजनेस हो रहा है ना बेटा, आज सारी एप्स बनी हुई हैं, क्या हो रहा है, हम लोग क्या कर आप। जी सर. तो ये मल्टीप्लाई, यानी कोई आपसे, अब मैं आपसे इसलिए पूछता हूँ, कभी इंटरव्यू में आपसे कोई पूछता है कि भाई आपने जो है वो D2C इतना फास्ट मल्टीप्लाई क्यों हुआ, तो आप कहेंगे बिकॉज ऑफ द इंटरनेट इनेबल्ड ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन। आप ठीक है,
ये नहीं कहेंगे नहीं सर बहुत तेज हो गया, ये तो बड़ा मसला है, ये तो जो है ना वो सभी कर रहे हैं, सभी नहीं कर रहे हैं। You must have some rationales, reasons. So मैंने कहा एग्जांपल आपने डेल की दे दी in computers. EasyJet. Yes, EasyJet देखेंगे जाकर नेट पे देखिएगा. In the EasyJet is a low cost airline business. EasyJet एक और एक इंग्लैंड में एक अमेरिका में कंपनी है लैंड्स एंड LAND लैंड्स एंड, वो क्लॉथिंग में होती है, क्लॉथिंग. Each of these companies made a virtue out of increasing customer convenience or reducing cost, or in some case both, by employing the direct model. In addition, देखें अच्छा होता क्या है, मुझे एक बात और बताएं. In addition to the reducing cost, what are some other benefits or they gain due to this D2C मॉडल? क्या अब्दुल राजिक, क्या और क्या फायदा होगा अगर हम बात करेंगे डायरेक्ट कस्टमर बेचते हैं तो? कॉस्ट का तो एक सर कस्टमर का डाटा डायरेक्टली कलेक्ट हो रहा होता है. यस, यू आर अब्दुल राजिक, वेरी गुड है अब्दुल हसीब साहब. हाँ मैंने अब्दुल राजिक से पूछा था, लेकिन माशाल्लाह you are very right, because you know in addition to that in reducing cost and convenience, क्योंकि एक देखें D2C का एक एडवांटेज होता है, कस्टमर की फीलिंग ये आती है कि आई एम बाइंग ओरिजिनल प्रोडक्ट. क्या ख्याल है सर? एक और भी फायदा होता है इसका ये कि आप आए कस्टमर के में लिए जो, सर मैं यहीं पे हूँ, आपको मैं जवाब देना चाह रहा था तो मैंने कहा आप कहते सर नहीं, मैंने आपसे पूछा था कि अगर हम कंसीडर कर सकते हैं, वरना तो मैंने आपको जाने से पहले भी कहा था जैसा आपकी कम्युनिकेशन. एक बात और याद रखेंगे, I don't like the decisions, right? कि आपने decide कर लिया. I'm a decision maker of your class. You can only request, right? You can't write like this behalf of all the class. This class is not interested. If class is not interested, I will take a class. How can you say I'm not interested? सही, आप 6 बजे के बाद कहाँ जाना है? ऐसा क्या हो गया भाई, इमरजेंसी हो गई? जी चलें, खैर जी अब्दुल राजिक साहब, I'm really about the feedback of your class. जी सर इसके अलावा मैं ये भी कह रहा था कि कस्टमर्स को कोई कंप्लेंट हो, कोई चीज ऐसा अक्सर बेशतर हम यही सोचते रहते हैं कि अगर मैं डायरेक्ट नहीं लूंगा तो कोई प्रॉब्लम होगी, कोई कंप्लेंट होगी, रिटर्न करना होगा तो वो कैसे होगा. ये सारी चीजें काफी आसान हो जाती हैं इन मामलात में, D2C में. बिल्कुल सही कह रहे हैं. अच्छा, अब हमें एक बहुत अच्छी बात अब्दुल हसीब साहब ने कही. He said, in addition to convenience and the cost, the company gained valuable customer insights through the direct interaction. And Abdul Razik said, I can directly complain about the product, or based on these insights, customer insights, company can adjust prices and promotional offers instantly to respond to demand and supply issues. क्या ख्याल है? क्योंकि फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिल रही है, नॉट अ कैस्केडिंग इंफॉर्मेशन. विजिबिलिटी बढ़ जाती है. यस, विजिबिलिटी बढ़ जाती जी सर. है ना. अच्छा, अब देखो आज अगर हम देखें, नाउ वी सी ऑलमोस्ट एवरी consumer goods producer offering an online presence. ऐसे ही है, and which may include direct sales. This channel is known as vendor.com. अब ये नई टर्म जो इंट्रोड्यूस हुई है, this is known as a vendor.com. Vendor.com concept is that you are selling online. तो कभी इंटरव्यू पूछे vendor.com का क्या मतलब है, तो आप vendor.com ढूंढने ना लग जाइएगा. vendor.com वेबसाइट नहीं होगा. vendor.com term is used, you are selling your products online. समझ रहे हैं बात? And this is basically, it is a model that also includes the direct sales force typically seen calling on the very large corporate accounts in most B2B sectors. ऐसा ही होता है. अभी हमें
खुद हमारे अब्दुल राजिक साहब ने कहा कि हम कॉर्पोरेट अकाउंट्स के केस में जो बड़ी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें हम डायरेक्ट बेचते हैं, हमारे सेल्स के लोग डायरेक्ट कंपनीज को फोन करते हैं। यही कहा था अब्दुल राजिक साहब आपने? बिल्कुल सर, मैं यही कह रहा था। ठीक है सर ये vendor.com में अगर कोई किसी का ऐसा मॉडल है कि ऑनलाइन भी है और डिस्ट्रीब्यूटर भी है, तो ये भी vendor.com में लाई करेंगे? vendor.com का कॉन्सेप्ट ये है कि यू आर सेलिंग डायरेक्टली वाया ऑनलाइन टू योर कंज्यूमर्स। तो हर कंपनी जैसे पाकिस्तान केबल्स है वो Taraz.pk ऑनलाइन कंज्यूमर को भी जी तो इसका सेल कर मतलब रहा है और डिस्ट्रीब्यूटर को भी दे रहा है। बिल्कुल हर कंपनी कर रही है। अब जैसे रैकेट बैंकिज़र है बेटा, वो डिस्ट्रीब्यूटर को भी कर रही है और ऑनलाइन भी कह रहे हैं आज आप खरीद लें। उससे कुछ प्लस और माइनस हैं जो मैं समझता हूँ आपको वो प्रोज एंड कॉन्स लिखने चाहिए। यू शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मैं आरबी बाजार से क्यों खरीदूंगा और मैं क्यों नहीं खरीदूंगा। ये सवाल आप नहीं खरीदेंगे। ये आपने कहीं लिखना है, फिर मुझे नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे पूछूंगा कि डॉक्टर सुमेरा कहें मैं खरीदूंगी, तो आप डिबेट करेंगे मैं खरीदूंगी दिस रीजंस। अरसलान कुरैशी कहें मैं नहीं खरीदूंगा ड्यू टू दिस रीजंस। तो इट में एक्सेसिबिलिटी का भी इशू हो सकता है, किसी का कोई इशू हो सकता है, मतलब अब ये हर नहीं बंदे की अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से। लेकिन अब ये सोचेंगे क्यों खरीदेंगे और क्यों नहीं खरीदेंगे। देखें देयर आर सम विजिबल फैक्ट्स। कैसा हो सकता है? अरसलान कुरैशी के पूरे साल में मुझे जो है ना वो 500 ml की एक बोतल चाहिए होती है डिटॉल की। आई विल नॉट बाय ऑनलाइन। क्यों? क्योंकि एक इतनी सी बोतल के लिए ऑनलाइन खरीदूंगा उतने ही प्राइस में, क्योंकि वो कहते हैं अगर 5,000 या 2,000 से कम का बास्केट होएगा डिलीवरी चार्जेस सर। डिलीवरी चार्जेस, तो आप कहेंगे कि डिलीवरी चार्जेस ऐड होके वो उतने का हो गया जो मेरे बराबर में इकबाल जनरल स्टोर में मिलता है। आई विल नॉट बाय। तो आपने वो रीजंस ढूंढने। मेरे घर के करीब सर इम्तियाज है। आई विल नॉट गो टू फॉर द ऑनलाइन। मैं इम्तियाज से जाके ले लूंगी। अब आप उसके रीजन ढूंढेंगे इम्तियाज क्यों जाएंगे। आप कहेंगे मुझे इम्तियाज पे ट्रस्ट है, हो सकता है मैं पूरी बास्केट खरीदती हूँ, हो सकता है मेरी कंजम्पशन मेरे घर की इतनी कम है कि मेरे अगर मैं 2,000 का खरीदती हूँ तो इट विल लास्ट फॉर 4 months और 3 months। तो मुझे जरूरत लो प्राइस भी है, लो प्राइस का मुझे कोई एडवांटेज नहीं है क्योंकि उसी रेट पे मुझे इम्तियाज से मिल जाता है। तो ऐसी कुछ बातें या सर अर्जेंट नीड नहीं है तो जब ग्रोसरी लेने जाना तो साथ ही ले लेंगे, ये भी होता है ना। तो ये आपने रीजन सर ये एक्सपेक्ट ये भी है ना कि फील एंड टच के भी तो है ना, कुछ चीजें होती है बंदा जब तक उसको टच ना करे जब तक तसल्ली नहीं होती। हाँ लेकिन फील एंड टच में मेरा ख्याल है डिटॉल अब उससे निकल गया होगा। मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है। मोर्टीन हो गया, डिटॉल हो गया, ये चीजें शायद आप क्वालिटी का भी है, मिलावट ना हो तो आप समझेंगे कि डिटॉल सर ये पर्टिकुलरली सिर्फ डिटॉल के लिए करने पॉइंट्स या सर या कोई भी प्रोडक्ट ले सकते हैं? आरबी बाजार के लिए आरबी बाजार रैकेट बैंकिज़र bazaar.com। either you will buy or you will not buy। why you will buy, why will you prefer, and what are the reasons for no, what are the reasons for yes। देखिए इसी फिर आप अपने चैनल बनाएंगे ना। ठीक है सर। सर मैंने अभी जो है वो वेबसाइट गूगल पे सर्च की तो लिखा नहीं आ रहा कि आरबी बाजार, मुझे मिली नहीं, लिंक नहीं मिला। फेसबुक पे लिखें आरबी बाजार। अच्छा फेसबुक पे है? जी और इनकी ऐप भी आरबी बाजार, इस पे ना जाएं जरा ऐप स्टोर पे आरबी बाजार लिखें। अच्छा इसी तरह से अच्छा जैसे मेरा एक्सपीरियंस है ऑनलाइन का। लास्ट टाइम आई ट्राइड दिस कारफोर ऑनलाइन। मैंने सोचा कि मैं ना जाऊंगा नहीं और मैं ना ये कारफोर की ऐप मैंने इंस्टॉल करी। ये लिखनी नजर आ रही है आपको, मैं दिखाता हूँ आपको। ये मैंने इंस्टॉल करी कारफोर। मैंने पूरा ऑर्डर भी प्लेस कर दिया। वो क्या कहते हैं 3 दिन बाद उन्होंने कह दिया कि जी वो 3 दिन का पहले टाइम दिया, 3 दिन बाद आया कि हमारे पास लोड इतना है कि अभी ये दिस ऑर्डर डिलीवरी में लेट फॉर फ्यू डेज। तो इसका मतलब है कि मैं अब नेक्स्ट टाइम तो कभी ऑनलाइन अप्लाई नहीं करूंगा इसके ऊपर। देखने हैं आप लोगों ने किए, किसी ने ऑनलाइन कभी ट्राई किया? इनकी सर्विस बहुत खराब है। डेफिनेटली सर, अगर लीड टाइम इतना ले रहा है तो कभी नहीं की ना। तो मैंने तो ये ऑर्डर जो है वो कैंसिल कर दिया। मैंने कहा नहीं, मैं इनकी शक्ल जी सर्विस भी बहुत खराब है और प्राइसेस भी प्रीमियम चार्ज करते हैं। देख रहे हैं आप, कैंसिल लिखा हुआ नजर आ रहा है।
मैंने ऑर्डर सर इसके अलावा भी एक बड़ा रीजन है सर कि जो है ना ऑनलाइन से को स्विच करते हुए थोड़ा सा हम लोगों को टाइम और लग जाएगा, स्पेशली फॉर अ कंट्री लाइक पाकिस्तान। इंडिया का मैं कुछ नहीं कह सकता। जो सर ग्रोसरी शॉपिंग है और इस तरीके की शॉपिंग है, इट इज कंसिडर्ड मोर टू बी एन एक्सपीरियंस। पूरी फैमिली जाती है सर कार्ड लेके, और वो बिकॉज वी डू नॉट हैव एनी अदर वो ऑप्शन ज्यादा खाने पीने के अलावा एंटरटेनमेंट के, इट इज आल्सो कंसीडर्ड टू बी अ फुल फ्लेजेड एक्सपीरियंस ऑफ ग्रोसरी शॉपिंग। तो इसलिए फैमिलीज जैसे मिस गौहर कह रही है मैं इम्तियाज से जाके ले लूंगी, आरबी बाजार से नहीं लूंगी। दिस इज वन ऑफ द अब ये रोड देखिए, ब्लॉक्स सर। देखो बेटा, अब ये कहीं पर आप कह रहे हैं जो एक बड़ी भी और अंकल रहते हैं डिफेंस में, वो तो नहीं जाएंगे। तो हमें वो रीजन ढूंढने हैं। देखो हर एक, मैंने आपसे क्या कहा था, सम हैबिट्स शुरू में मैंने आपसे डिस्कस किया, ये बहुत बड़ा फैक्टर है ड्यूरिंग द डिजाइन ऑफ योर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट, नॉट एन एक्सपेंसिव टास्क टू चेंज द हैबिट। एक बंदा है जिसको जब तक वो बॉटल को हाथ ना लगा ले उसको मजा ही नहीं आएगा। एक बंदा है जो कह सेटिस्फाई नहीं होता सेटिस्फाई। अच्छा खैर, एनीवे, तो दूसरा चलते हैं। दूसरी जो पहली मैंने आपसे ये कहा कि दिस इज डायरेक्ट चैनल, सेकंड इज अ वन टियर डिस्ट्रीब्यूशन। कौन सी? वन टियर। एंड दिस वन टियर डिस्ट्रीब्यूशन इज defined by employing one set of intermediaries between the company and its customers to increase reach. In this case, सर ये मोस्टली न्यू प्रोडक्ट के साथ होता है गैस। वन टियर नहीं, किसी भी प्रोडक्ट का हो सकता है। आप क्यों देखें, अब जरा सुने, ये भी डॉक्टर साहब ने यकीनन आपके साथ शेयर किया होगा। वन टियर का एडवांटेज क्या है, जरा सा सुनते हैं, मेरे साथ रहेंगे जरा, ठीक है? ये जरा माइक म्यूट रखेंगे। कोई साहब है जिनका माइक बहुत म्यूट रहता है, अनम्यूट रहता है, कौन है ये? देखें, आपने अभी आप क्या कर रहे हैं, दिस इज योर कंपनी, मेरे साथ रहिएगा जरा, कंपनी, एंड दीज आर योर कंज्यूमर्स। ऐसे ही हो रहा है। इसको आपने क्या नाम दिया था बेटा? क्या नाम रखा था इसका? डायरेक्ट टू कंज्यूमर। ये ऐसे ऐसे। अच्छा, अब प्रॉब्लम इसमें ये आ रहा है कि बहुत सारे ऐसे कंज्यूमर्स हैं, या तो वो ऑनलाइन नहीं है, या आप इतने लोगों को फोन कर रहे हैं, किसी के पास फोन नहीं है, बहुत सारी चीजें। सो यू कांट रीच all the consumers. So what you do, you include one intermediaries, maybe a retailer. इसको कहते हैं फाइनल टियर। इसको क्या कहते हैं? फाइनल टियर। फाइनल टियर का मतलब है कंज्यूमर इससे खरीदता है, इसको फाइनल टियर भी कहते हैं। ये सब कुछ आपने कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ भी है, रिपीट भी हो रहा है, ठीक है? फाइनल टियर, इट मींस नाउ बिटवीन कंपनी एंड कंज्यूमर वन टियर इज इंक्लूडेड। इसका एडवांटेज होता है कि अब कंज्यूमर को बहुत कन्वीनियंस हो जाती है, वो यहाँ से जाके खरीद सकता है। ऐसे ही लीड टाइम रिड्यूस हो जाता है, रिकवरी इजी हो जाती है। रिकवरी भी इजी होगी। बहुत सारे इसके अभी आगे देखते हैं। इसका जब मैं इसको रखूंगा तो मैं आपसे आने वाले वक्तों में पूछूंगा कि मैं इसको क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि हर एक का वाई तो चाहिए ना, है ना? जस्टिफिकेशन चाहिए, नहीं तो फिर वही हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर एंड कंज्यूमर। तो भाई वेरी इंपॉर्टेंट। अब जरा सुनेंगे, ये जरूरी नहीं है कि ये रिटेलर ही हो। समटाइम्स मे बी this company is in Japan and there is a big market of your product. You are selling an industrial product and there is a big market of industrial product in Pakistan. So rather than every customer is contacting directly to Japan, sometimes they appoint one agent.
then agent become a contact between the company and the consumer. बात समझ में नहीं आ रही? Yes, sir. Like authorized distributors. Authorized distribution. distribution. Sir, Yes. आ रही है ना बात समझ में? अच्छा. Sir, this is like Alibaba. No, Alibaba is something else. Alibaba is a platform. Alibaba भी मैं बताता हूँ. Huawei. Alibaba is something else. Alibaba is a platform. अब इस पे थोड़ी सी बात करते हैं, जरा और भी जरा पहले देख लें. तो मैंने आपसे कहा कि ओवरसीज एजेंट and because these intermediaries provide some special services to complete the customer offer. अच्छा, कंजर्वेटरी इंस्टॉलर समझते हैं क्या होता है? No, sir. No, sir. No, sir. समझेंगे. हमारे अभी कोई साहब थे ना, अरसलान, ये लोग डिस्ट्रीब्यूटर हैं ग्रैंड फॉस. अच्छा, ग्रैंड फॉस का पंप जब खरीदते हैं तो उसकी इंस्टॉलेशन दानियाल ने खरीदी अपनी कंपनी के लिए, लेकिन उसकी इंस्टॉलेशन इनको नहीं आती. तो अगर ये ग्रैंड फॉस डायरेक्ट ग्रैंड फॉस से मंगवा लें यूएस से, तो पंप तो मंगवा सकते हैं, लेकिन इंस्टॉलेशन के लिए इनको फिर लोकल पार्टनर की जरूरत पड़ती है ग्रैंड फॉस को. तो फॉर सम प्रोडक्ट्स वेयर कंजर्वेटरी installers are required, so that's why they include some intermediary. नहीं समझ रहे? Understood, sir. जी सर, समझ गए. सर आ रही है तो सर. आपके पास ना हर चीज का रीजन होना चाहिए. आपने डीलर क्यों रखा, एजेंट क्यों रखा? अब देखो, अगर कंजर्वेटरी इंस्टॉलर का रोल होगा तो उसको इट मींस अरसलान कुरैशी की जो कंपनी है, दे नीड टू हायर सम स्पेशलिस्ट फॉर इंस्टॉलेशन. अगर नहीं रखी तो फिर इनका पर्पस फॉत हो जाएगा. बिल्कुल ऐसा ही है. जी अरसलान, आप समझ रहे हैं बात? Exactly, sir. Exactly. सर, पैनासोनिक के एसी आते थे पहले, और पैनासोनिक के एसी लोग लेने से कतरा इसलिए जाते थे कि यहाँ पे लोकल उसकी कोई सर्विसिंग पार्टनर कुछ भी नहीं था, लेकिन अब उसकी सर्विसिंग मेरे ख्याल में पेल ने ले लिया. तो क्या ये भी इसी कैटेगरी में फॉल करता है? इसका मतलब है कि सिर्फ आफ्टर सेल सपोर्ट, आफ्टर सेल टेक्निकल सर्विस पेल ने ले ली है पैनासोनिक की, तो अब शायद लोगों का रुझान बढ़ जाए. लेकिन देखें, वो है, देखें उसमें दो चीजें होती है. एक होता है सर्विस पार्टनर और एक होता है फुलफिलमेंट पार्टनर. फुलफिलमेंट पार्टनर में भी दानियाल जुनेजो एंड कंपनी, जो के प्रोडक्ट मंगाती है और बेचती है. लेकिन सर्विस पार्टनर वो है कि जब भी आप कभी आप फिलिप्स की प्रोडक्ट खरीद लें तो उसके नीचे सर्विस कार्ड के नीचे लिखा होता है अथराइज सर्विस सेंटर्स. तो आपने वो एजेंट अलग है, यानी एक फुलफिलमेंट का एजेंट है और एक सर्विस का एजेंट है. तो आपको समटाइम्स यू नीड टू एजेंट्स. सर्विस एजेंट्स अलग क्यों? क्योंकि सर्विस एजेंट की रिक्वायरमेंट अलग है, उसकी टेक्निकल एक्सपर्टीज होनी चाहिए. फुलफिलमेंट एजेंट की या तो फुलफिलमेंट एजेंट की एक्सपर्टीज होनी चाहिए कुरियर वाली, जो कि हमारे अभी हमारे कुरियर वाले एक साहब है ना, डिलीवरी की है ना, या तो उसकी एक्सपर्टीज होनी चाहिए. और अगर साथ साथ कोई ऐसी कंपनी है जो कि प्रोडक्ट नई प्रोडक्ट ला रही है, तो उसके लिए वैल्यू एडिड सर्विसेज भी चाहिए, यानी उस बंदे को बेचना भी आता हो. अगर बेचना नहीं आ रहा होगा तो भी नहीं बेच सकेगा. यानी कि टीसीएस बेचने की कोशिश नहीं करता, वो एस्टेब्लिश्ड प्रोडक्ट की डिलीवरी करवा देता है. अगर बेचने की भी कोशिश कर रहा है तो वैल्यू एडिड काम कर रहा है, और हर चीज के पैसे हैं. तो जरा सा देखते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं. मैंने आपसे कहा कि सर, अगर एक मिनट में छोटी सी प्रोसेस बताना चाहता हूँ. जी जी जी. तो ट्रेडिशनली ऑनलाइन वेबसाइट सेलिंग हुई, हमने उसको डिलीवर किया फुलफिलमेंट के तौर पे. हम काम कर रहे हैं, हम उसको सेल कर रहे हैं नॉर्मल चैनल से. ठीक है. हम लोगों ने एक सिनेरियो सेट किया कि वी चोज कोरियर्स from our team, जो कि अच्छे कोरियर्स थे, who were educated, going into mohallas or going into a market to deliver, to start selling the online website sales के products, and we gave them a commission. So this becomes kind of a extension value creation के जी we reach the customer by using an innovative channel. Cost बहुत कम आई और हमने sales बहुत अच्छी करी. नतीजा ये हुआ, ब्लैक फ्राइडे की जो सेल्स हुई उसमें 35 to 40%, 35% सेल्स उन लोगों की, वो चैनल था, आया ऑर्डर दिया उन्होंने ऑनलाइन. बट अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग है 30% to 35% सेल्स
ये टीम ऑफ 30 लोग कर गए इन वेरियस cities because they were outreaching that customer, bridging that gap. तो channel उनका वो bridge कर लिया ना, वो there was an innovative channel that we used. Very good. This is known as the persuading services ना, कस्टमर को परसुएट करते हैं कि आप हमारी प्रोडक्ट लें, जी बिल्कुल, है ना। और सब जी सर जैसे हम सोलर पैनल्स मंगवा रहे हैं बाहर से और उसके लिए सर इंस्टॉलेशन पर्सन जो होते हैं वो यहाँ पे हम लोकली हायर कर रहे होते हैं, तो दैट इज कंजर्वेटरी इंस्टॉलर्स। नो, अब ये बताएंगे कि कंजर्वेटरी इंस्टॉलर जी कि वो जो जिससे सोलर पैनल का एजेंट है, क्या ये उसके बंदे हैं? उसके बंदे नहीं है। नहीं सर, उसके नहीं होते, नहीं, लोकली नहीं, हमारे पास ही आके असेंबलिंग करते हैं। नहीं, वो तो फिर उस कंपनी और आपके दरमियान को वो किसी से भी करवा लें, वो आप अब्दुल राजिक से करवा लें, फैसल जलाल से करवा लें, काशिफ सईद से करवा लें, जो भी बंदे को पकड़ करवा लें। हाँ, अगर वो कंपनी कंपलसरी है कि ये पार्टनर हो। हाँ, ये पार्टनर हो, कंजर्वेटरी इंस्टॉलर्स ना, जो ऑफर टू कंप्लीट द कस्टमर ऑफर, यानी आप ये वो ऑफर अब्दुल राजिक एंड कंपनी ये ऑफर दे रहा है कि आप मेरा सोलर पैनल लगाएं, मैं आपकी छत पे इंस्टॉल करवा के दूंगा। अब अब्दुल राजिक तो बैठे हैं कनाडा में, तो कैसे इंस्टॉल करवाएंगे? तो ही विल हायर मी एज एन इंस्टॉलर। तो इसका मतलब है जब आप इनसे खरीदेंगी तो ये मैं आपके घर पे आऊंगा, इंस्टॉल करके चला जाऊंगा। दिस इज इट मींस इन्होंने एक टियर ऐड कर दिया बिटवीन the company and the buyer and consumer. सर ट्रीना का कुछ ऐसा ही केस था, मैंने ट्रीना चाइना को डायरेक्टली कांटेक्ट किया था, तो जैसे ही कांटेक्ट किया मुझे दुबई से एक बंदे की ईमेल आ गई कि फला बंदा पाकिस्तान से आपको थोड़ी देर में कांटेक्ट कर लेगा। इसका मतलब तो फिर बात, है। हाँ, लाहौर से किसी ने मुझे कांटेक्ट किया सर, हाँ आपको इतने इतने चाहिए सोलर पैनल्स वगैरह वगैरह। तो जरा आगे देखते हैं। अच्छा, इसका मतलब है मैंने आपसे क्या कहा, कंजर्वेटरी इंस्टॉलर्स एंड समटाइम्स your retailer position the product within established channels for customers. कहता है ना कि यार इतने लोगों के लिए सर ये वाली जो प्रोडक्ट है ना, ये मुझे पता है 25 लोगों यही हमेशा शैम्पू इस्तेमाल करते हैं, तो वो जैसे ही आपकी प्रोडक्ट आती है वो उन एस्टेब्लिश चैनल पे लोगों को बताना शुरू करता है, ये खरीद लीजिए सर, ये खरीद लीजिए। तो ये आपकी प्रोडक्ट की एक पोजीशन भी क्रिएट करता है, समझ रहे हैं। अच्छा, इन सारी जगहों पर फिर सप्लायर्स की कोशिश के बजाय कस्टमर को परसुएट करता है आपका एजेंट टू चेंज देयर शॉपिंग एंड बाइंग हैबिट्स। ऐसे ही है ना, आपके काशिफ सईद साहब ने अभी खुद कहा कि मैंने 4 बंदे रख लिए, उन्होंने लोगों को फोन कर करके ऑर्डर पकड़ ली। तो अच्छा, अब वन टियर का जो एडवांटेज है, बेसिकली द बेनिफिट इंक्लूड easy and often immediate access to well-defined segments of customers, ऐसे ही, or the leveraging of investments made by the intermediaries, क्योंकि जो such as this overseas agents, warehouse and established sales forces, ऐसे ही हो रहा है। अब मैं अगर एजेंट बन जाता हूँ एक्स कंपनी का, और जो पाकिस्तान में और जो XYZ कंपनी, फॉर एग्जांपल ग्रैंड फॉस की एग्जांपल लेते हैं। ग्रैंड फॉस अगर पाकिस्तान में खुद आता है, दे नीड ऑफिस, दे नीड वेयरहाउस, दे नीड सेल्स फोर्स, रादर देन, अच्छा फिर उसके बाद जब वो पाकिस्तान में दे आर न्यू, दे नीड अ लॉट ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेज टू क्रिएट द वेल डिफाइंड सेगमेंट ऑफ कस्टमर्स, वेयर एज दिस इनकी कंपनी जो अभी हमारे साथ हैं जनाब अरसलान ओरिएंट वाटर सर, है ना, तो अरसलान साहब की कंपनी जो है, दे हैव, इट मींस ग्रैंड फॉस है राइट नाउ, बिकॉज ऑफ दिस ओरिएंट वाटर, they have easy and immediate access to well defined customer segments, yes or no, and they are leveraging the investments made by Orient Water for Grand Foss, for warehouses, for established sales force. क्या ख्याल है? यस सर, है ना, ये सारे एडवांटेज उसको मिल रहे हैं ना। तो ये अब मुझे देखो, अब मैं जब डिस्ट्रीब्यूटर, देखो अब जरा सुनना है, इसका मतलब है अगर मैं किसी का डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहता हूँ, ये हमने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचना है ना। अगर इफ यू आर इंटरेस्टेड टू बिकम अ डिस्ट्रीब्यूटर और ट्रेडर और एजेंट ऑफ एनी बिग ब्रांड, तो व्हाट आर द एक्सपेक्टेशंस ऑफ दैट ब्रांड फ्रॉम यू। अगर एक्सपेक्टेशन हमें पता ही नहीं है तो ये ना हो कि वहां भी बात खराब हो सकती, ऐसे ही है जी सर, है ना। और अगर एक्सपेक्टेशन पता नहीं, बाद में उसकी डिमांड इतनी सारी हो हम फुलफिल नहीं कर सकते,
तो लेकिन जो किया हमने लिया, जी सर। हमारा कोई बैकग्राउंड नहीं था किया, लेकिन और ना ही पता था कि हम क्या कर। नहीं, किया के ऊपर आपने, फैसल ने बड़ा काम किया है 2 साल ना, 2-3 साल। फैसल ने तो सारी ऑटो हाँ। की साइड, ऑटो फैसल की वजह से तो किया में आप लोग आए थे, क्योंकि फैसल ने पूरी ऑटो इनसाइड इंडस मोटर का पूरा सब कुछ शेयर किया विद अब्बास। क्या ख्याल है आपका? हाँ जी जी, मार्केट का विदाउट फैसल इट वाज नॉट पॉसिबल। विजिबिलिटी। जी जी, जी फैसल ने 2 साल तो काम ही इसके ऊपर किया ना, कि जी। अदरवाइज फैसल वाज विद लकी सीमेंट। हाँ, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कोरियन मैन्युफैक्चर वर्सेस लगभग उसमें कोई बैकग्राउंड नहीं था, जितना हम बात कर रहे हैं ना कि मार्केट स्टैब्लिश थी और आपके इसलिए पास हमने पैसे थे। फ्रेंचाइज लिया। देखिए एक और चीज थी, यू वर रेडी टू इन्वेस्ट। और हाँ, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, ये बात। फाइनेंशियल, अच्छा किया का एक बड़ा बैड एक्सपीरियंस था विद दीवान। तो जो पिछला पार्टनर था, जी जी, ही वाज अ थर्ड क्लास पार्टनर। वो भी एक हाँ, इम्पैक्ट। वो बड़ा नेगेटिव इमेज। यस, तो उस नेगेटिव इमेज के साथ आपने अपने आप को पॉजिटिव करना, ये भी एक बड़ी बात थी। लेकिन अब इसके साथ साथ थोड़े से देखिए, हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स, देयर आर सम डिसएडवांटेजेस, एंड द डिसएडवांटेजेस इंक्लूड the need to grant an acceptable trading margin to the intermediary and a degree of dilution of focus, because the intermediary sells many brands including potentially direct competitor. ऐसा हो सकता है? यस सर, नहीं ऐसा सर, ही ये है बात क्योंकि नहीं समझ आई। जी डायरेक्ट सर। कंपेटिटर ऑफ हु सर? डायरेक्ट कंपेटिटर ऑफ ऑफ योर मतलब ब्रांड। समझ में नहीं आई। ऑफ द ब्रांड। ग्रैंड फॉस और भी तो 10-15 पंप बेच रहा है, या तो मैं अपना ऑफिस आकर यहाँ अच्छा, मतलब अरसलान ग्रैंड फॉस का कंपेटिटर भी बेच रहा होगा, आप ये कह रहे हैं? यस, मैं इसकी डिसएडवांटेज है, यानी कि वन डायरेक्ट अगर मैं टियर 1 पे जाता हूँ तो एडवांटेज तो मुझे नजर आ गया कि अरसलान के सारे इन्वेस्टमेंट मुझे मिल रही है, सेल्स फोर्स मिल रही है, मार्केट बनी हुई मिल रही है। लेकिन साथ साथ डिसएडवांटेज है कि अरसलान इज ऑलरेडी सेलिंग, और अरसलान मे सेल माय कंपेटिटर्स मे बी अ चाइनीज ब्रांड, कोरियन ब्रांड्स। और सर ऐसा ही है, और एक ऐसा मिनट ही है सर, बेटा, चाइनीज ब्रांड भी हम। मैं 1 मिनट बाद आपका इनपुट लेता हूँ। अच्छा, साथ साथ उसके एक और भी रीजन है, क्योंकि मैं खुद इतना बड़ा नाम नहीं है पाकिस्तान में कि लोग मुझसे, मैं फौरन आ जाऊंगा, तो इस वजह से मैं अरसलान को ये भी नहीं कह सकता कि चाइनीज ना बेचो, कहेंगे ठीक है आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मुझे तो मार्केट में एंट्री चाहिए। अच्छा, अब इसकी वजह से हुआ क्या कि एक तो ये मुझसे मार्जिन बड़ा मांगेंगे, ऐसे ही है ना, एक्सेप्टेबल मार्जिन चाहिए, छोटे मार्जिन पे काम नहीं करूंगा। दूसरा ये कहेंगे कि भाई ये मेरे कंपेटिटर को भी बेच सकते हैं। इसका मतलब है जैसे ही ये कंपेटिटर को बेचना करते हैं, बेटा फोकस डाइल्यूट हो जाता है। अब ये क्या करते हैं, ये कहते हैं यार एक कस्टमर आया, Yes, sir. ये आपका योर पंप इज वेरी वेरी एक्सपेंसिव, ओके नो प्रॉब्लम सर, आई हैव अनदर ऑप्शन फॉर यू, आप ये ले लीजिए। सर ये बिल्कुल वैसे ही काम करता है, ग्रैंड फॉस भी इसी से बनवा रहा है, ऐसी ऐसी बातें भी करते हैं, वो भी चाइनीज में सर असेंबली हो रही है सर ये। तो इसका मतलब है आपका फोकस एक नहीं रहता जब आप इंटर, because you are selling many brands, or sometimes you potentially direct competitors. जी अरसलान साहब, आप क्योंकि आप एक जरा सा सोचें, थिंक, जस्ट थिंक अबाउट इट, क्योंकि मैंने कहा 1 टियर में क्या हो रहा है, फाइनल टियर यानी कंपनी, फाइनल टियर और फिर कंज्यूमर, ऐसे ही हो रहा है। जी तो सर। अब जरा सा जाओ सुपर स्टोर में, अब्दुल राजिक, just tell me how many varieties of soft drink or cereal are on offer in the average grocery store. सर मतलब आप कैसे काउंट करेंगे सर? जितने ब्रांड है, फौजी, कैलॉज, आपके कैलॉज के 10 SKUs, एक डाइट प्लस वाला, नॉर्मल वाला, फ्रूट लूप्स, 1000 किस्म के सर, हर जो And व्हाटएवर इज अवेलेबल इन द मार्केट। yes, इसका मतलब है कि मेरा फोकस तो डाइल्यूट हो गया ना जब मैं वहां अंदर जाता हूँ, या तो मेरी शॉप हो, केलॉग्स की शॉप हो। तो इसमें WMI का क्या रोल हो सकता है? VMI, सॉरी। हाँ, अच्छा, वेंडर मैनेज इन्वेंट्री ना, देखिए वेंडर मैनेज इन्वेंट्री इज अ कॉन्सेप्ट कि वो कहाँ पर होना चाहिए, वो कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स में शायद आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप बन सकती है। VMI पढ़ा है आप लोगों ने वैसे? सर पढ़ा तो है, आई एम नॉट श्योर हमने PGD में पढ़ा, लेकिन पढ़ा है सर
वैसे सर जनरल सप्लाई चेन में सर डॉक्टर रमीज ने इसको थोड़ा सा डिफाइन किया था, कुछ एग्जांपल्स वगैरह देख के। थोड़ा चलें, अच्छा जरा सा VMI इसको नहीं कहना चाहिए, VMI इज अ कॉन्सेप्ट। तो VMI में ये हो सकता है, हमारे जनाब मोहतरम जफर साहब, फॉर एग्जांपल आपने कहा है तो मैं बता देता हूँ, आप समझेंगे शायद मुझे आता नहीं है, तो फिर उसके बाद अरसलान कुरैशी साहब से हम मैं लिंक कर रहा था, ये जो आप कह रहे थे ना, मैं लिंक उसको कराता लिंक हूँ। कर रहा था जहाँ पे स्टोर की बात है। देखिए लिंक कैसे होता है, VMI अप्लाई कर सकता हूँ, VMI इज अ कॉन्सेप्ट। कैसे हो रहा है, जरा मेरे साथ रहेंगे 2 मिनट के लिए। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ SKF bearings, SKF bearings। अरसलान उसके बाद आपका फीडबैक लेते हैं ना। जी जी सर जी। टाइम अभी तो 6 बजे हैं, है ना, अभी घर नींद तो नहीं आ रही ना अब्दुल राजिक? सर ऑल गुड। नींद उड़ा दी है फैसल साहब आपने। SKF जरा सुनते हैं। SKF is a Danish brand, right? SKF पाकिस्तान, SKF पाकिस्तान इनका ऑफिस है, ठीक है। अच्छा अब क्या है कि दे हैव डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूटर है A, B, C, D और ये 5 डिस्ट्रीब्यूटर है। मैं एग्जैक्ट नंबर नहीं बता रहा हूँ मगर मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा SKF पाकिस्तान कोई स्टॉक नहीं रखता। SKF पाकिस्तान ये है SKF फॉर एग्जांपल एशिया पैसिफिक। एशिया पैसिफिक सिंगापुर में स्टॉक होता है। SKF पाकिस्तान के बंदे हर डिस्ट्रीब्यूटर के पास आते हैं और उससे ऑर्डर लेते हैं। और ये ऑर्डर प्लेस होता है यहां, बात नहीं समझ में आ रही। ये ऑर्डर प्लेस होता है यहां और LC भी खोली जाती है इन्हीं के नाम, SKF सिंगापुर, और इनका माल यहां आ जाता है। आप ड्रॉप शिप कर रहे हैं सर ये? नहीं, ड्रॉप शिपिंग इज समथिंग एल्स। मैं तो डायरेक्ट LC सर कस्टमर के नाम पे क्यों खुल रही है? कस्टमर थोड़ी है, सप्लायर है ना बेटा, ये तो SKF एशिया पैसिफिक। नहीं समझे, इनका कोई ताल्लुक नहीं, ये तो पोस्ट ऑफिस। अब सुने, इसका मतलब है माल इनके पास आ गया। यहाँ तक बात समझ में आ रही? अब जी सर। अब ये बहुत सारे, ये है IIL इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इंडस मोटर कंपनी, 3M, टंडो शुगर मिल, ऐसे ऐसे बहुत सारे। अच्छा इन सबको अगर फर्ज करें ये 3 कराची में हैं, ये 2 लाहौर में, तो कहा गया होगा कि जी लाहौर के लोगों को आप लोग केटर करें, कराची को आप तीनों करें, ऐसे ही? जी सर। अच्छा अब क्या होगा कि ये जब इनको बेरिंग की जरूरत होती है इनसे राब्ता करते हैं, ये बेरिंग इनके पास होता है, ये इनको दे देते हैं, ये इनसे, इसका मतलब है इनकी टीम ना हर वक्त इनको विजिट करती रहती होगी और इनकी भी करती रहती होगी, आप ये वाला बेरिंग लगाइए, ऐसे ही है ना। अब क्या हुआ जी, इसका मतलब है ये कंपनी है, ये इसके डिस्ट्रीब्यूटर हैं और ये कंज्यूमर हैं। यहाँ तक बात समझ में आ रही? जी सर। यही मॉडल है ना। अच्छा अब क्या होता है कि ये डिस्ट्रीब्यूटर है ना, कभी कभी ये डिस्ट्रीब्यूटरों ने ना कुछ दुकानें भी को भी माल रखना शुरू कर दिया इधर, क्या कहते हैं, कौन सी मार्केट है ऑटो पार्ट्स की जो है, क्या कहते हैं, प्लाजा। अच्छा प्लाजा पे भी 2-3 दुकानें, बेरिंग हाउस, बेरिंग सेंटर, वो लोग भी कुछ थोड़े थोड़े बेरिंग रख लेते हैं, क्योंकि कोई जो छोटा मैन्युफैक्चरर होता है, उसको एक ही बेरिंग चाहिए तो वो डिस्ट्रीब्यूटर से लेने के बजाय रिटेलर से ले लेता है, क्योंकि उसका परचेजर होता है। अब्दुल राजिक जाते हैं मोटरसाइकिल पे, वहां से 2 बेरिंग ले आते हैं, ऐसे ही होता है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटर मॉडल बन गया। इसका मतलब है इन्होंने सेगमेंटेशन कैसे की हुई है, जो बड़े कस्टमर हैं उनको डिस्ट्रीब्यूटर कर रहा है, और कुछ कस्टमर्स ऐसे भी हैं कि जहां कहीं नया प्लांट लग रहा है वहां पर ये डायरेक्ट आते हैं
और डायरेक्ट यहाँ से एलसीज के नाम खुलवा देते हैं। अब देखो एक मॉडल नहीं चलता है, मैं बार बार आपसे कहना चाहता हूँ मल्टीपल मॉडल्स, याद है दिस इज नोन एज स्ट्रेटेजी। याद है मैंने स्ट्रेटेजी का मतलब क्या था, कौन से खालू से कैसे ट्रीट करना है, कैसे ट्रीट करना है। तो अब यहाँ तो आपको देख रहे हैं, आपको 2-3 अलग अलग खालू नजर आ रहे हैं। ये वाले खालू जी सर। छोटे खालू हैं, इनको ये ट्रीट कर रहा है, ये थोड़े बड़े हैं, ये केई में एमडी हैं, ऐसे ही हो रहा है ना। तो आ रही है बात समझ में, डिस्ट्रीब्यूशन। अब बात आती है जो हमें जनाब मोहतरम जफर साहब ने कही कि व्हाट इज वीएमआई। वीएमआई में ये होता है कि सुनिएगा जरा, इसको बोलते हैं वेंडर मैनेज्ड इन्वेंटरी। अच्छा आईआईएल में 94 टाइप्स के डिफरेंट बेयरिंग्स यूज होते हैं। अच्छा बेयरिंग्स का कुछ पता नहीं किस वक्त इस्तेमाल हो जाए, टूट भी सकता है, ठीक है। तो किया ये जाता है एज अ स्पेयर्स, आईआईएल हर टाइप के बेयरिंग्स की क्वांटिटी अपने पास हर वक्त स्टोर में रखता है। यहां तक मेरे साथ हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा बेयरिंग जब आप अपने स्टोर में रखते हैं तो बेयरिंग के लिए एक चीज का ख्याल रखना पड़ता है, बेयरिंग के अंदर जो है ना वो ऑयल होता है। अगर बेयरिंग को आपने मूव करता है जी, उसको मूव करना होता है, 1 महीने बाद मूव कर दें, अगर आप 20 दिन बाद जो नहीं किया तो रोटेट करना होता है। पूरा तेल नीचे आ जाएगा, ऊपर रस्ट लग जाएगा। बात समझ में आ रही? अच्छा जी सर। बेयरिंग का आपको क्या पता कि बेयरिंग कब इस्तेमाल होगा, आप तो लेके रख लेते हैं। तो कभी कभी बेयरिंग, अच्छा इसका मतलब है 94 टाइप्स के बेयरिंग के लिए आपके जो है वो 150 मिलियन हर वक्त फंसे रहते हैं। क्योंकि आप ये तो नहीं कह सकते ना कि बेयरिंग, भाई बेयरिंग जब टूटेगा तो उस दिन नहीं मिला तो क्या होगा। तो करते ये हैं कि ये वाली कंपनी है हमारे अब्दुल राजिक साहब की, ये आईआईएल आते हैं, ये कहते हैं कि हम लोग एक डील करते हैं। डील क्या है? कहते हैं मैं आपके 94 टाइप के बेयरिंग के स्टॉक आपके पास रखवा दूंगा। ये सारा स्टॉक होगा मेरा, आपकी किताबों में ये आ रहा होगा, उसको कहते हैं कंसाइनमेंट स्टॉक। क्या कहते हैं? कंसाइनमेंट स्टॉक। एसएपी में अभी आप पढ़ेंगे भी कंसाइनमेंट। इसका मतलब है ये स्टॉक आपकी इन्वेंट्री में बिल्ड हो रहा है, नहीं होगा, नहीं है, क्योंकि आपकी तो मेरा स्टॉक है, बुक्स में नहीं। अच्छा आपके पास मौजूद है ये बेयरिंग, वैसे मैं मार्केट में देता हूँ 100 रुपए का, आपको दूंगा 101 रुपए। और ये आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, प्रॉपर्टी मेरी है। जिस दिन आप इसको इस्तेमाल करेंगे मैं आपको इनवॉइस कर दूंगा। इसका मतलब है आईआईएल को ये श्योरिटी है कि सारे आइटम उसके हर वक्त अवेलेबल हैं और उसका 1 रुपया नहीं लगा हुआ। जो उसकी जरूरत होगी तो सिर्फ 1-2% ही फर्क पड़ रहा है, कहाँ 150 मिलियन को सारा साल रखना, कहाँ हल्का सा महंगा लेना। नहीं बात समझ में आ रही? सर स्पेस यूटिलाइजेशन तो वो कर ही रहा है, होल्डिंग कॉस्ट तो पड़ेगी इसे। किसको पड़ेगी? सर आईआईएल अपनी स्पेस दे रहा है ना इसको, सिर्फ स्पेस दे रहा है। होल्डिंग कॉस्ट बेटा ये कैपिटल होता है, होल्डिंग कॉस्ट तो कैपिटल होता है। 50 पैसे तो नहीं लगे हुए ना इसकी, सिर्फ जगह दी हुई। सही, पैसे तो नहीं लगे हुए ना, पैसे तो नहीं फंसे हुए सर, यानी पैसे तो नहीं फंसे हुए। अच्छा अब क्या हो रहा है? अच्छा अब जब इसने ये 94 टाइप की बेयरिंग रखे हुए तो इसको मेंटेनेंस भी नहीं करनी पड़ती, क्योंकि ये सारा है अब्दुल राजिक का। तो अब्दुल राजिक की टीम हर 20 दिन बाद आती है, पूरे बेयरिंग को पलटती है। अच्छा अब्दुल राजिक को सिर्फ एक इंटरेस्ट है, वो ये कि यार ये आईआईएल जब भी खरीदेगा मुझसे खरीदेगा, ये खरीदेगा। इसका मतलब है कस्टमर इनका पक्का हो गया। और आईआईएल को ये इंटरेस्ट है कि यार जब भी मुझे चाहिए होगा मुझे माल मिल जाएगा। अच्छा देखें अब्दुल राजिक ने किया क्या है, अब्दुल राजिक को एज अ डिस्ट्रीब्यूटर ये सारा माल रखना है। इन्होंने बजाय इसके कि अपने स्टोर में रखते उठा के यहाँ रख दिया। अब जब कोई और कस्टमर मांगता है ये यहाँ से उठा के उसको देते हैं, नई लॉट यहाँ रखवा देते हैं। नहीं आ रही बात समझ? जी सर इन्वेंट्री कॉस्ट बचा ली ना सर, जो इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट बचा रहे हैं ना। और आपको क्या इंटरेस्ट है? कस्टमर पक्का है, कस्टमर पक्का है और कस्टमर थोड़ा सा मुझे प्रीमियम पे उठा रहा है।
दिस इज नोन एज VMI। आई एम श्योर ये आपको पता होगा पहले से। जी जफर सही है सर। सर, ये मॉडल करता है, 2 मॉडल में से एक मॉडल सर उसका यही है, वेंडर मैनेजमेंट इन्वेंटरी वाला। वेंडर मैनेज्ड इन्वेंटरी, जी वेंडर मैनेजमेंट। वेंडर अपनी इन्वेंटरी का खुद जिम्मेदार है, वो जगह के पैसे लेता है, ये सर 2 मॉडल में से एक मॉडल उसका यही है। लेकिन वो प्लेसमेंट के पैसे लेता है। यहाँ पर जी जी सर। अब्दुल राजिक साहब कह रहे हैं जब बिकेगा तो मैं उसको महंगा बेचूंगा, रखने को अगर रखने के पैसे मांगेंगे ILK का भाग जाओ, क्योंकि उसका वो मॉल है, वो मॉल में रखने के शोकेस के पैसे ले रहा है। वो जो आपका मॉडल है वो शोकेस में पैसे ले रहा है। जी सर इंटरनेशनली VMI का क्या ट्रेंड चल रहा है? क्योंकि मैं एक आई एम कमिंग फ्रॉम वन पॉइंट। IIL में हम नहीं कराए। राइट। कि मैं कहाँ से आ रहा हूँ कि साउथ अफ्रीका में हमारी जो सब्सिडियरी है वो पिछले कोई 20 साल से VMI पे ही काम कर रही थी एक बड़े इसके साथ, लेकिन रिसेंटली वो क्लोज करके उसको एज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटर हम लोगों ने वो करवाया। हम लोगों ने लीडरशिप में, साउथ अफ्रीकन लीडरशिप ने हमारी डिस्ट्रीब्यूशन की बेस क्या बनाई सर कि एक तो कंप्लायंस के इश्यूज, दूसरा ये कि रखे अगर सामान डैमेज हो जाता था तो वो बोलते वो हमारे ही खाते में आता था। इस तरीके की 2-3 और इश्यूज। आपका डिस्ट्रीब्यूटर सही नहीं था ना। हमारे यहाँ तो ये क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटर बिल्कुल दिन बाद आता है। बिल्कुल सर, मैनेज करेगा, यही प्रॉब्लम थी। आप मैनेज करवाएं ना, और आप उससे सर ओवरऑल ट्रेंड VMI का अभी भी ऑन पार ही है या डिक्लाइन पे है? मैं ये नहीं, पता करना चाह रहा था। पाकिस्तान जैसे कंट्री में तो अभी लोगों को पता भी नहीं है। लेकिन सर एक और चीज है, जैसे मैंने लिली फार्मा में भी ज्वाइन किया तो इनका भी सर ये जो मोरक्को अफ्रीका का एरिया है, पहले सर इसकी सारी प्रोक्योरमेंट और ये हम अपनी प्रोडक्ट को खुद हैंडल करे थे, लेकिन क्योंकि अफ्रीका की कंडीशन के हिसाब से हमने भी डिस्ट्रीब्यूशन यही मॉडल, अब उन्होंने मुझे बताया था अभी जब सर मेरी चल रही है मीटिंग, तो वो ये कह रहे हैं कि हम डिस्ट्रीब्यूशन को हैंड ओवर कर रहे हैं वहाँ पे, तो इसका मतलब सर वो यही इन्वेंट्री डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल यूज करना शुरू कर रहे हैं। यस। तो अब आपने देखें, मैं एक और बात कहूंगा, बिजनेस इज ए डायनामिक्स गेम ऑफ डायनामिक्स। जैसे जैसे डायनामिक्स चेंज होंगे, हो सकता है ग्रैंड फॉस, मैं आपको आज बता रहा हूँ, हो सकता है मे बी आफ्टर 10 years ग्रैंड फॉस यहाँ बैठा हो, इनका बोरिया बिस्तर उसने गोल कर दिया हो, जिस दिन उसका वॉल्यूम बहुत बड़ा हो जाएगा। क्या ख्याल है अरसलान कुरैशी साहब? सर इसमें मैं आप मार्केट। जी अरसलान साहब। हाँ सर, इसमें मैं ऐड करूंगा कि ऐसा ग्रैंड फॉस की जो स्ट्रेटेजी थी वो एशिया पे उसने इतना वर्किंग की ही नहीं कभी। हालांकि यहाँ मार्केट इनकी बहुत पोटेंशियल था यहाँ पे, और उन्होंने एक हमसे गेम ये किया हुआ था कि यहाँ उनके मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूटर्स भी थे। तो जब हम कहीं टेंडर वगैरह करते थे तो हमें पता चलता था कि भाई फला कंपनी भी है जिसके पास ग्रैंड फॉस का कुछ माल रखा हुआ है। तो इस बिहाफ पे फिर हमने ये करना शुरू किया कि फिर हमने अपने पास एक चाइनीज प्रोडक्ट भी रखी जो कॉस्ट में उससे 3 times कम थी, और वारंटीज वगैरह एंड परफॉर्मेंस वैसी ही थी। तो फिर वही आप वाली बात के फिर वहाँ पे थोड़ा सा लॉयल्टी का एक इशू आया और फोकस का, कि फिर हमने फिर सारी अपनी जो फोकस था वो कस्टमर की बाइंग पावर पे लगा दिया, कि जहाँ हमें लगा कि कस्टमर में बाइंग पावर है तो वहाँ ग्रैंड फॉस, और जहाँ बाइंग पावर लो है। इसका मतलब बेटा अरसलान साहब, इसका मतलब है इट मींस ग्रैंड फॉस वाज आल्सो नॉट लॉयल विद यू। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली ऐसा ही वो है। आपके साथ लॉयल रहता तो आप कभी उसको नहीं छोड़ते फिर ऐसे ना, फिर आप कस्टमर को कन्विंस, क्योंकि उसने भी हरकत ये करी कि इसको भी बेच रहा है, उसको बेच रहा है, दुबई से भी आ रहा है, चाइना से भी आ रहा है, कोरियन भी आ रहा है, हर आदमी, खुली मार्केट है ना। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली ऐसा ही है। अच्छा, अब मैंने आपसे कहा कि इसमें मैंने आपसे एक और बात कही, इन एडिशन अदर देन ऑल दीज डिसएडवांटेजेस, एक डिसएडवांटेज और नजर आता है, द डिस्टेंसिंग ऑफ द कस्टमर by interjecting a layer of intermediaries can be a major disadvantage। आपके और कस्टमर के दरमियान में एक आदमी आ जाता है, इसका मतलब है ग्रैंड फॉस को अब रियल फीडबैक पाकिस्तान का नहीं मिल रहा होगा। ऐसा ही है सर, उनके इवन उनके कंट्री मैनेजर भी थे वो छोड़ के जा चुके हैं उनको, तो वो अब बिल्कुल डिपेंडेंट है सेल्स के ऊपर। It means it is depend on what information is intermediary is willing or contracted to share with the supplier। जो आपका दिल चाहता होगा वो उसको बताते होंगे, जो दिल नहीं चाहता होगा वो आप कहते होंगे जाने दो, ये तो हमारे काम की बात नहीं है। ऐसे ही है ना? एग्जैक्टली सर, ऐसा ही है, ऐसा ही है। अच्छा, इसके बाद जो एक और हम तीसरा भी देख लेते हैं, बस 5 मिनट में छोड़ते हैं। अब्दुल राजिक साहब आप परेशान हो रहे हैं थोड़ा सा,
तो बस लास्ट में आपको छोड़ता हूँ सर। तो द थर्ड वन इज अ 2-tier डिस्ट्रीब्यूशन। ये 3 कहते हैं, देखिए बेसिक 3 मॉडल है, बाकी मल्टी लेयर आप जितने चाहे बना लें। सो 2-tier distributions in many markets there are potentially thousands of intermediaries who service the customer segments, a supplier or a company is seeking to reach, and each of these may handle only a few sales a month, and the cost of finding them and managing a commercial relationship with them cannot be recovered from the margin such a low volume of sales. Now tasavvur करें, imagine yourself to be a manufacturer of a particularly tasty chewable toffee. Now think about it. You need to reach the thousands of small boys and girls and the odd parents and grandparents across the country who would expect to find your toffee in their local kiosks, mom and pop stores, stations, retail store. retail stores, sweet shops, and sweet aisle in the big grocery store. So it would be prohibitively expensive in terms of sales people and infrastructure to sell to each one of thousands of such stores across the country. ऐसे ही होगा, तो फिर क्या करेंगे? Because fortunately someone has already done this for you in the form of a relatively small number of cash and carry warehouses, distributors, where these retail stores go once or twice a week to replenish their inventory. And to reach them, to reach all these retail stores, all you need is to get your products into these distributors or cash and carry operators. ऐसा ही है? जी सर। It means you now have a 2-tier distribution model, from you to the cash and carry or a distributor to the retailers to the customer. क्या है? जी सर। And you will find this type of model in computers, mobile phones, ऐसे ही है या नहीं? जी सर। अच्छा, इसका एक एडवांटेज क्या होगा? तो वो डिस्ट्रीब्यूटर इंपोर्ट करता है और वही डिस्ट्रीब्यूटर सेल करता है, कोई मिस नहीं होगा, कोई रिटेलर। तो वो उसकी कवरेज कॉस्ट में डिसएडवांटेज क्या होगा? सर आपकी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट आपकी बचेगी, आप बस में भेजेंगे। एग्जैक्टली, इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट मिलेगा। यू विल लेवरेज अ कॉस्ट इफेक्टिवनेस एंड बल्क में भेजेंगे, फुल ट्रक लोड्स भेजेंगे। It will enable you to reach wide mass but low volume market at the cost of, नहीं समझे बात नहीं की। अच्छा, इसमें थोड़ा सा जरा मुझे 5 मिनट और दे सकते हैं, कोई मसला तो नहीं है? तो there are many variations in these basic structures which evolve to meet the unique aspect of particular market, industry segment, customers. इसमें जो पहला कहलाता है वो कहलाता है मल्टी टियर। इसका मतलब है अब 2 के बजाय क्या हो जाएगा? You will add additional tiers. Just think about it. जरा सुने सिगरेट डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? बहुत ही कम। ठीक है, सिगरेट मैन्युफैक्चरर in Pakistan who will sell a single cigarette at a time. क्या हो रहा होगा सोचें। बंदा यानी मैन्युफैक्चरर बेचता है डिस्ट्रीब्यूटर को, डिस्ट्रीब्यूटर बेचता है होलसेलर को, होलसेलर बेचता है रिटेलर को। आपने देखा है रिटेलर से बंदा एक पैकेट लेके जाता है और फिर एक सिगरेट भी बेचता है। नहीं समझ रहे हो? यस सर।
आ जाएगा। अब यही आप सोचना शुरू करें, बिकॉज यू आर हैविंग बॉट अ पैकेट फ्रॉम द लोकल शॉप एंड देन स्टार्ट सेलिंग सिंगल सिगरेट। क्या ख्याल है? अभी आप यूनिलीवर की जी मास्क का भी ऐसे ही हो रहा है, मास्क के साथ भी लोग यही कर रहे हैं। हाँ, मास्क के साथ भी रब्बी बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो डब्बा लिया हुआ होता है बंदे ने 250 रुपए का और 5 रुपए का मास्क। अच्छा, कोई कहीं कुछ तो लोग ऐसा होगा जिसने कहीं आपकी कंपनी के बाहर भी खड़ा हो रहा होगा, कहीं वो उस पे क्या कहते हैं सिग्नल्स पे आपको लोग नजर आते हैं। यू आर राइट, वेरी गुड। सो अच्छा, इसमें यूनिलीवर की अगर आप सेल्स सोप इन अ साशे देखा है आपने, और वो क्या कहते हैं शैम्पू, जी सर, because these sachet containing enough for a single wash, and these are bought and resold by several layers of dealers। देखा है आपने डिस्ट्रीब्यूटर्स लाके आपके घर के मोहल्ले में जो पान की दुकान है वो भी ये साशे रखे होते हैं जी। अच्छा, आप अगर चाइना में देखें तो यू विल फाइंड 5 tier और 6 tier डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। अच्छा, ग्रोसरी just for different type of product। मैंने कहा ना, बिल्कुल रट्टा नहीं मानेंगे कि एक टाइप, इज अ टाइप ऑफ प्रोडक्ट। यू आर नॉट सेलिंग ग्रोसरी। what is your product? either you are making cigarette or a shampoo or a soap or a mask or a sanitizer or a pen, क्योंकि आप सब कुछ तो नहीं बेच रहे हैं। You are not a retailer, you are a manufacturer। You are going to develop a distribution channel for your product। either you are interested to become a distributor or you are interested to hire some distributor। दो ही बातें होंगी ना, या तो खुद डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं या फिर किसी को हायर करना। यस। अच्छा, इसके बाद अब मैं ये सोच रहा हूँ कि हमारे पास पाकिस्तान में ऐसी कौन सी प्रोडक्ट होगी जो 4 या 5 टियर पे बिक्री होगी? सिगरेट है, सिगरेट बहुत आराम सर ये से। जो बिस्किट के बाहर लेके बैठे होते हैं वो सर ये जो सिम कार्ड भी जो ये बेच रहे होते हैं, कार्ड बेच रहे हैं बहुत सारे। अब आप सोचें, देखिए मैंने आपको एक वो दे दिया, आप चलते फिरते ना आप सोचते जाएं कीनू कैसे बिकते हैं, मोबाइल फोन कैसे बिकता है, मोबाइल फोन डायरेक्ट भी बिकता है। आप चले जाएं क्या कहते हैं ये सदर में मोबाइल मार्केट में, एक तो दुकान पे बिक रहा होगा, बराबर में छोटी दुकान वाला भी बेच रहा होगा, रोड पे मोटरसाइकिल पे ना एक बंदा 4 मोबाइल फोन लेके खड़ा होगा, वो भी बेच रहा है। वो कौन सी टियर है? ये सब मल्टी टियर्ड में आ जाएंगे। मल्टी टियर्स में एग्जैक्टली, समझ रहे हैं बात, है ना? जी सर। इसी तरह से एग्रीगेटर्स, मैंने आपको लास्ट टाइम कहा था, दीज आर प्लेयर्स हु अपीयर इन सम सेक्टर्स एंड इफेक्टिवली फोर्स द वेंडर्स टू डू बिजनेस विद देम। एग्रीगेटर्स कौन होते हैं? वो जो जैसे आपके यहाँ वो आड़ती कहलाते हैं, क्योंकि वो पूरी बहुत सारे लोगों की डिमांड लाकर एक दफा और एक बहुत बड़ी क्वांटिटी का ऑर्डर दे देते हैं। तो ये वो फिर वो सर ये निश मार्केट में ज्यादा होगा? नहीं, ये तो एग्रीगेटर्स तो आपकी आड़ती तो आपको नजर आते हैं जो चने की मार्केट में, फूड में, वेजिटेबल्स में। आप कहते हैं ना चीनी माफिया, दीज आर एग्रीगेटर्स। क्यों? क्योंकि ये कहते हैं पूरा 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 खेत खरीद लिया करते हैं पहले से। जी सर, इंडेंटर्स भी एग्रीगेटर कहलाते हैं? इंडेंटर्स इंडेंटर्स तो एजेंट होता है ना बेटा। एग्रीगेटर्स कौन होते हैं? जरा सुनना, मतलब देखो एग्रीगेटर्स कौन होते हैं? They are brokers who bring together the demand of customers or final tier intermediaries so that they can buy in bulk। ये ब्रोकर्स कहलाते हैं। ये हमारे जफर साहब बहुत अच्छा समझते होंगे। मेमनों में बहुत ब्रोकर एक जमाने में होते थे, क्या कहते हैं इसके, जूट का ब्रोकर होता था, कॉटन का ब्रोकर होता था। वो बल्क में बहुत सारे लोगों की डिमांड खरीद के और फिर बल्क में एक दफा कलेक्ट करते हैं, बल्क में खरीदते हैं। जो आईफोन आते हैं ये भी गन्ना भी ऐसे ही करते हैं मेरे ख्याल से। गन्ना भी बहुत सारी जगह पे बाय करके फिर वो शुगर मिल को बेच रहे होते हैं, बहुत सारे फार्मर से खरीद के, है ना। बेसिकली दे टेक द एडवांटेज ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल and they can be disruptive, leverage volume discount term to secure the best price and then selling on down the channel। खुद खरीद लेते हैं फिर नीचे बेचते हैं। अच्छा, वो इतनी बड़ी क्वांटिटी में इतना सस्ता खरीद लेते हैं कि अगर आप डायरेक्ट कंपनी से खरीदने की बात करेंगे तो वो उससे सस्ता आपको मिलेगा। ये कंपनी फिर आप बहुत छोटी सी क्वांटिटी मांगते हैं। ये एग्रीगेटर्स कहलाते हैं। फिर एक और चैनल की बात करेंगे, दिस इज नोट एज अ प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म वो है जो जैसे अलीबाबा इज अ प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म क्या होता है? आपको देखें, बेसिकली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट चैलेंज फेसिंग a small or a niche online retailer is
getting in front of their target customers because they simply don't have the financial resources to build a visible brand presence. आप कैसे करेंगे इतने लोगों का reach? तो इसके लिए क्या होगा? After this internet, this has led to the emergence of an online platform, the biggest of which are Amazon, Alibaba, and there are hundreds of thousands of retailers finding their customers by leveraging Amazon customers, pulling power. ऐसे ही होता है नहीं होता? And search capabilities. अच्छा अब क्या हो रहा है? लोकली फूड पैंडा ने पैंडा मार्ट जो लॉन्च किया है जी, आई थिंक वो एग्रीगेटर की तरफ ही जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपने स्टॉकिंग की जगहें कर दी हैं इन कराची. इवन माय प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट स्टार्टेड आस्किंग देम फॉर लार्ज कैपेसिटी लार्ज डिलीवरीज इन कराची, लाहौर, इस्लामाबाद. मुझे जरूरत नहीं है, वो वहीं पे ही स्टॉकिंग कर रहे हैं, बल्क पाएंगे वहीं से पाएंगे. तो वी माइट गो इनटू दिस. ये बहुत ही नया फिनोमेना जो आई थिंक वर्थ लुकिंग एट. यस. अच्छा इसमें एक और भी एक देखिए प्लेटफॉर्म में एक और चीज है, जरा सुनेंगे. एक और होता है, दिस इज नोन एज अ प्लेटफॉर्म ऑपरेट थ्रू ऑफरिंग अ कंपैरिजन प्रोपोजिशन. आप जाइए comparethemarket.com, moneysupermarket.com. These type of websites offer customers the ability to search for the best value car or home insurance or home utilities and other consumer services just clicking through the purchases. इसका मतलब है ये अगर आप इस प्लेटफॉर्म पे चले जाते हैं, अपनी रजिस्टर करा देते हैं और अपनी प्रोडक्ट को, तो ये प्लेटफॉर्म मुझे एक कस्टमर तक रीच आसान कर रहा है या नहीं कर रहा? बिल्कुल, है ना? जी सर. अच्छा इसी तरह से अभी आप देखें these platforms are moving into businesses services. अच्छा in travel sectors we have seen hotels.com, booking.com, Trivago, Expedia, Ctrip was the first portal in China, and many of these platforms operate in sectors where there are high fixed costs like utilities, flights, hotels, where volumes are critical to profitability. तो याद रखेंगे कि यहाँ ये एक ऐसा मॉडल है जिसमें कि आप जो है वो मेरा ख्याल है इस बिजनेस में आपको जाना चाहिए. और एक आखिरी जो इम्पोर्टेंट है उसको कहते हैं OEM. OEM ये कि OEM क्या करता है? OEM अपनी प्रोडक्ट बनाता है और किसी चीज में इंस्टॉल कर देता है. इसके लिए उसको मार्केट करने की जरूरत नहीं होती. अल्टीमेटली आपको वो प्रोडक्ट खुद ब खुद ही, फॉर एग्जांपल यू ओन अ इलेक्ट्रिक मोटर और अ सिलिकॉन चिप. इंटेल की अगर बात करें तो इंटेल के लिए कंप्यूटर में खुद ही इंस्टॉल होगा. दिस इज नॉट एज OEM मैन्युफैक्चरर चैनल. एंड दिस बहुत सी जी हाँ सर, बहुत सी इक्विपमेंट्स के साथ जैसे सीमेंस की मोटर बिल्ट इन आ रही होती है. जी, this is not the OEM manufacturer channel, because you know this is where one supplier, the OEM, makes a product that is embedded inside another. ऐसे ही किया आपने. For example, आपने कहा electric motor inside maybe a lift or a stair lift or silicon chip inside a computer, and on their own the electric motor and silicon chip don't comprise complete product. ऐसे ही है. So the route to market is first into the OEM channel and then as a part of a completed product into one of other channel structures, right? तो एक तरीका ये भी है. सर एजी सीमेंट के ओनर, एजेंसी ओनर के पास बैठा जी, वो ये कह रहा है कि जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं 30 आइटम चाहिए होते हैं एक बिल्डिंग बनाने में. जी, टाइल्स है, शीट है, ये सब. तो बहुत सारे इनके कस्टमर है वो 1 विंडो ऑपरेशन चाहते हैं. हालांकि इसका काम नहीं है, इसका काम सिर्फ सीमेंट, एजी सीमेंट देना. हाँ, लेकिन बाकी सर्विस भी इससे ले रहे होते हैं. जी, स्टील भी ला के दे दो, मुझे टाइल्स भी ला के दो. तो ये किस चीज में है? ये बेसिकली देखें ये क्या कर रहा है, ये एग्रीगेटर का काम करता है. ये करता है क्या है कि ना ये बहुत सारे लोगों की डिमांड पकड़ रहे हैं और जब लोगों की डिमांड पकड़ के इसकी क्वांटिटी एक बहुत बड़ी क्वांटिटी हो जाती है. एग्रीगेट कर लेता है ना 4-5 कस्टमर की डिमांड. तो फिर ये अगर डील करता है जाकर उस मैन्युफैक्चरर से तो इसको वो प्राइस मिलते हैं जिसमें कि ही कैन मेक मनी एंड द कस्टमर इज also getting some advantages, price advantage. क्योंकि कस्टमर अगर डायरेक्ट उस कंपनी से लेता है, फॉर एग्जांपल ये इस कॉन्सेप्ट को एक और कॉन्सेप्ट होता है उसको कहते हैं O2O, ऑनलाइन टू ऑफलाइन.
उसमें भी कॉन्सेप्ट ऐसा है कि जो एग्रीगेटर्स है कि फॉर एग्जांपल अगर आपने कहा कि मैं 5 टन कोई स्टील लेने आप जाते हैं तो 5 टन के प्राइस मुझे मिलते हैं 110 रुपए केजी, लेकिन दानियाल जुनेजो साहब 15 लोगों से 5-5 टन का ऑर्डर पकड़ लेते हैं तो वो जाता है 75 टन। तो जब आप 75 टन का ये ऑर्डर लेने जाते हैं वो कहता है 103, और समटाइम्स बिकॉज ऑफ बिग क्वांटिटी वो कहता है भाई आप कुछ डिस्काउंट दो, कहता है चलो 100 पे आ जाओ, तो 100 पे आता है, आप मुझे आपने 110 का दिया था, 108 का दिया था, मैं आपको 105 का देता हूँ, 3 रुपए अपने भी रख लेता हूँ, मुझे करना कुछ नहीं होता, इसलिए वो करता है काम। देयर इज नो, ये काम है बहुत बड़ा स्टील ट्रेडिंग का। मेरे एक स्टूडेंट है, उन्होंने अभी ये काम ही शुरू कर दिया। ही वाज वर्किंग विद दैट कौन सा है जो आजकल बहुत मशहूर है, जिसका एक भी आता है ना, स्टील, कौन सा स्टील है, पाकिस्तान स्टील, अमरेली स्टील, यस, वो अमरेली का जनरल मैनेजर था। ही लेफ्ट अमरेली स्टील और नाउ ही इज अ ट्रेडर ऑफ ऑल द स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज। तो अभी वो आगा स्टील का भी ट्रेडर है, सबका उसने अपना टी स्टील के नाम से रख लिया है, तारिक नाम है उसका, तारिक टी स्टील। तो या ये भी एक है, क्योंकि उसको कस्टमर सारे जो है ना वो पता थे, तो कस्टमर अब वो क्या करता है, कस्टमर एग्रीगेटर है, सबसे ऑर्डर पकड़ता है, एक जॉइंट ऑर्डर ले जाके उनसे नेगोशिएट करता है, बात आगे बढ़ देता है। ठीक है, तो सर एक सवाल है सेग्रीगेशन वाले बिजनेस मॉडल के हवाले से। जी सर इस सिचुएशन में लीड टाइम किस तरीके से प्ले करता है? वो ऑर्डर तो ले लेते होंगे, लेकिन जब वो जाएंगे, नेगोशिएट करेंगे, फिर माल आएगा, फिर बेचेंगे, तो कस्टमर इतनी देर रुकेगा सर, वेट करेगा? कस्टमर बेटा बड़ा होता है ना, कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं, साइट वाले हैं, फ्लैट बन रहे हैं, वो यानी कि वो कोई 1 टन उसको कल थोड़ी सरिया चाहिए, सीमेंट इनको कल थोड़ी चाहिए। सीमेंट का बिजनेस ऐसा होता है। सर ये केपी में आईफोन जो आते हैं और बाद में बिकते हैं, ये भी सी में आएगा? नहीं, वो कोई तो कोई चैनल नहीं बेटा ना। एग्रीगेटर्स नॉर्मली ऑर्डर पकड़ते हैं ना, बहुत सारे ऑर्डर पकड़ के फिर लेकर आते हैं। अच्छा सर, ये लीगल तरीके से हो रहा होता है, ये केपी वाला चक्कर नहीं होता? नहीं लीगल होता है, ये बिजनेस है, बिजनेस। अच्छा जी, तो आज हमारी सेकंड सेशन है ना, नेक्स्ट सेशन में हम 1 घंटा इसके ऊपर और लगाएंगे, कुछ फाइनेंशियल आपसे डिस्कस करूंगा, और उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह ताला आगे ट्रांसपोर्टेशन पे चले जाएंगे।